Good morning, students. Today I am going to explain you the topic that is electromagnetic spectrum, blackbody radiation and photoelectric effect. Now the first topic is electromagnetic spectrum. In the previous lecture, we have already studied what are electromagnetic radiations and how can we differentiate one kind of electromagnetic radiation from other kind of electromagnetic radiation. There were some characteristics that are used to differentiate these electromagnetic radiation. Now taking wavelength as a criteria or a frequency as a criteria, and if I am going to arrange these electromagnetic radiation in order of their increasing wavelength or decreasing frequency, then I will get an arrangement. Now this arrangement is known as electromagnetic spectrum. क्लियर. जब हम इसको इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो मुझे एक अरेंजमेंट मिलेगा, एक स्केल टाइप मिलेगा. नाउ दिस स्केल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. Now come to the next, come to one numerical related to electromagnetic radiation. See, yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometer. Calculate frequency and wave number of yellow light. Clear? So here lambda wavelength is already given 580 nanometer, where we already know 1 nanometer is equals to 10 to the power minus 9 meter. So we can convert it in meter by multiplying it with 10 to the power minus 9. So this is the lambda. Next we have to calculate frequency and wave number. Since we already have a relation between speed, frequency and lambda, c is equals to nu lambda, so nu is equals to c by lambda, where we already know c for every electromagnetic radiation is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Keeping it, we will get frequency, that is by lambda 580 into 10 की power minus 9. From here we can calculate it. And second is the wave number, where we already know wave number is reciprocal of lambda. So 1 by 580 into 10 की power minus 9. From here we can calculate it. Yeah. So this was a numerical based on electromagnetic radiation. Come to the next numerical. Calculate wavelength, frequency and wave number of a light whose time period is 2 into 10 की power minus 10 seconds. Now see, here time period given is 2 into 10 की power minus 10 seconds. As we already know, frequency is the reciprocal of time period. From here we can calculate frequency. कर लेंगे. You have to calculate it. ठीक है, आंसर आएगा हर्ट्ज में. Calculated. Next is we can calculate lambda. As we already know, c is equals to n lambda, therefore n या nu lambda, therefore lambda is equals to c by nu, therefore 3 into 10 की power 8 meter per second by frequency is 1 upon 2 into 10 की power minus 10. So here we can, from here we can get lambda. Clear? It will come in meters. Okay. Now come to the next topic, that is limitations of wave theory of radiation. Now generally जो wave theory थी, it said that radiation travels in the form of waves, not in the form of particles, not in a straight line, but it performs a wave-like nature, just like water wave. ठीक है? Through it successfully explained diffraction, interference, but it failed to explain the phenomena of black body radiation as well as photoelectric effect. ठीक है? Now come to the first topic, that is black body radiation. Now starting to explain you black body, come to a basic idea.
दैट इज whenever एनी रेडिएशन फॉल्स ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस पे जब कोई रेडिएशन स्ट्राइक करती है, किसी टेबल पे या किसी ऑन एनीथिंग, ठीक है, कोई आयरन पार्टिकल है, कोई आयरन की बॉल है, ठीक है, अगर उस पर कोई रेडिएशन स्ट्राइक करेगी, व्हाट विल हैपन, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या करेगा, उसका कुछ पार्ट एमिट करता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है. सपोज इट इज़ एब्जॉर्बिंग 40%, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, 60% एमिट कर लिया, या 20% एब्जॉर्ब कर लिया, 80% एमिट कर लिया, कुछ भी, ठीक है. तो ये चीज़ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिपेंड करती है कि वो कितना पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, कितना पार्ट एमिट करेगा, ठीक है. तो ऐसी बॉडी जो कि जितनी रेडिएशन उस पर स्ट्राइक करे वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले और सारी की सारी एमिट कर ले, ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है. एन आइडियल बॉडी विच इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी, ठीक है. ऐसी बॉडी विच विल एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन एज वेल एज एमिट ऑल रेडिएशन, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी. और जो रेडिएशन वो एमिट करता है दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. क्लियर? वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, हमने एक आयरन बॉल का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है. तो ये जो आयरन बॉल थी, इनिशियली जब इस पर लाइट इंसिडेंट हुई तो उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, ठीक है. इट हैज़ एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, जो भी उसके सरफेस पर पड़ी वो सारी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर ली. फिर उसके बाद मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया. जैसे ही मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी इट विल कंटिन्यूसली एमिट रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देगा. इनिशियली उसने रेडिएशन एमिट करी रेड कलर की, जिससे कि वो पूरा रेड दिखने लग गया. कुछ टाइम बाद ये येलो दिखने लग गया क्योंकि उसने येलो कलर की रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर दिया. कुछ टाइम बाद वो वाइट कलर का दिखने लग गया बिकॉज इट इज़ गोइंग टू एमिट वाइट रेडिएशन. तो इस तरीके से उसने सारी की सारी रेडिएशन जो जितनी भी एब्जॉर्ब की थी सारी की सारी रेडिएशन उसने कंटिन्यूसली एमिट कर दी, ठीक है. तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है. Now come to the next topic, that is photoelectric effect. It is the phenomena of ejection of electrons from the surface of metal when light of a suitable frequency strikes it. Now, this is the photoelectric cell. ठीक है. ये हमने लिया है नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ये एक पर्टिकुलर मेटल का बना है, दिस इज मेड अप ऑफ अ मेटल, और ये एक डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. हमने एक एमीटर भी कनेक्ट किया है और बैटरी भी कनेक्ट की है टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. हमने एक बैटरी कनेक्ट किया और एक एमीटर कनेक्ट किया है. व्हाट हैपन्स, जब कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक करेगी ऑन दिस मेटल सरफेस, तो ये जो मेटल सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द सर्किट मूव करेंगे एंड एमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, यानी कि उस ये डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है. तो ये सेटअप था, दैट वाज द सेटअप. और ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड हो जाए, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट होगा दैट इज रिकॉर्डेड बाय दिस, ठीक है. तो बेसिकली दिस वाज द सेटअप. अब इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या हुए, हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए. सो फॉर अ पर्टिकुलर मेटल सरफेस देयर एग्जिस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सच दैट at frequency below the threshold frequency no electrons are emitted no matter how large the intensity is or how long radiation occurs. Clear? So what happened? Initially हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया एंड इंटेंसिटी इंक्रीज करते गए. फ्रीक्वेंसी वॉज केप्ट कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी वॉज गोइंग टू इंक्रीज, कंटिन्यूसली इंक्रीज की. पहले हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की, फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी, कोई इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं हुआ. इंटेंसिटी फिर बढ़ाई, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हुआ, ठीक है. सो हमें पता चल गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी. सेकेंड हमने क्या करा, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करा एंड फ्रीक्वेंसी आई एम गोइंग टू इंक्रीज. तो इनिशियली जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड. फिर मैंने इंक्रीज करा
तो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स गॉट इजेक्टेड। अब मुझे पता चल गया कि जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी पर। क्लियर। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिली कि जब तक फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं चढ़ती, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, भले इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा रखी हो। क्लियर। सेकेंड, नेक्स्ट ऑब्जर्व किया हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी एमिट हुए थे। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते गए, हमें मिला कि काइनेटिक एनर्जी वाज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन, और वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट था। थर्ड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब हमने कैलकुलेट किया कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के सरफेस से एमिट हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड कंटिन्यूसली वॉज गोइंग टू इंक्रीज, बट जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हुए। फ्रॉम हेयर हमें क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो डिपेंड कर रहा है किस पर, इंटेंसिटी पर, ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर। क्लियर। तो हमें दो बेसिक ऑब्जर्वेशन मिल गए कि फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होती है, एंड सेकेंड, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिलेटेड थे। ठीक है। अगर हम वेव थ्योरी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ रेडिएशन शुड डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। ठीक है, बट एनर्जी यहाँ पर किस पर डिपेंड करने लग गई, काइनेटिक एनर्जी, वो डिपेंड करने लग गई फ्रीक्वेंसी पर, जबकि उसको डिपेंड करना था इंटेंसिटी पर। दैट इज वाई वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन इट। तो वहाँ से फिर नेक्स्ट आया प्लैंक, और प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी टू एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेडिएंट एनर्जी, जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है कोई भी बॉडी, दैट इज नॉट कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता, बट इट एब्जॉर्ब्स और एमिट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटा। और अगर लाइट की बात करें तो इन केस ऑफ लाइट दीज आर नोन एज फोटोन। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, देर इज सम एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद वन क्वांटा। एक क्वांटा के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, और उसकी जो एनर्जी होती है क्वांटा की या फोटोन की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, वी विल गेट अ कांस्टेंट h, जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर। थर्ड, ही सेड कि बॉडी एमिट या एब्जॉर्ब करती है जब रेडिएशन, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में करेगी, या तो 1h न्यू एब्जॉर्ब करेगी, एमिट करेगी, या 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, इसके बीच में कोई भी वैल्यूज रेंज नहीं करती है। तो देयर वर 3 पोस्टुलेट्स जो कि प्लैंक ने दिए थे। इसके बाद आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस जो भी थे ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन आया, और उसने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि पर्टिकुलर एनर्जी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के ऊपर ही जब चढ़ती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चढ़ेगी, देन ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट आउट। ठीक है, तो उसने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बाउंडेड टू द मेटल सरफेस बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से वो मेटल के सरफेस से अट्रैक्टेड है। वो इलेक्ट्रॉन तब तक लूज नहीं करेगा मेटल जब तक हम उतनी ही एनर्जी सप्लाई ना करें बाहर से, टू ब्रेक इट्स अट्रैक्टिव फोर्स। उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जब तक उतनी एनर्जी मेटल को नहीं मिलेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और इस एनर्जी, ये जो मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस पे लाने के लिए, सरफेस के बाहर लाने के लिए, दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन
ऑफ दैट मेटल, और ये भी एक मेटल से दूसरे मेटल पे वेरी करता है, ठीक है। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उसने क्या बोला, अगर कोई भी रेडिएशन है, कोई भी फोटोन है जो कि स्ट्राइक कर रहा है मेटल के सरफेस को, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होगी, इफ इट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट आउट, ठीक है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब वो उसके बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको तोड़ नहीं पा रहा है, और जब वो तोड़ नहीं पा रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। क्लियर? Second, he said that if the frequency is equals to nu naught threshold frequency, then photoelectron will come out of the metal surface. He said कि जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, व्हाट विल हैपन, उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे मेटल के साथ वो सब टूट गए और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया मेटल सरफेस के। नंबर 3, when its frequency is greater than threshold frequency, then photoelectron comes out